Hello everyone, a very fresh good morning to all of you. How are you all today? I hope you all are fit and fine, right? So students, this is our third video lecture of EVS, chapter number 14, Keeping Our Earth Green. So in our previous lecture, we discussed about the importance of trees and how to save trees. So let me give you the quick revision of it, okay? See students, trees are very important for us. Trees are very important for the human life. Why? Because they are useful in many ways. Trees are very useful to us in many ways, right? Because trees gives us oxygen, right? The most essential gas that every living beings needed, right? So ट्रीज़ जो है वो हमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन ट्रीज रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर कूलिंग द सराउंडिंग, राइट? ट्रीज रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर कूलिंग द सराउंडिंग. वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को रिलीज करते हैं. इससे क्या होगा, हमारे जो सराउंडिंग है वो कूल होगा. देन yes, trees, from the trees we are making the paper, furniture, right? All these things we are made from the trees. So trees are very important for us. Then what is deforestation? Cutting down trees in large number is called deforestation. Cutting down trees in large numbers is called deforestation. So when we cut down the trees for making various things such as furniture, paper and houses, we should not cut down too many trees at one time as deforestation harms our environment, right? तो हम सब ये सारी चीज़ें बनाने के लिए फर्नीचर, पेपर, हाउसेस, राइट, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम लार्ज नंबर में ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. बट हमें एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, राइट? उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा. जब हम लार्ज नंबर में ट्रीज़ को कट करते हैं वन टाइम पे तो वो डिफॉरेस्टेशन होता है. और डिफॉरेस्टेशन हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. सो वी शुड नॉट डू दैट. देन कम्स हाउ टू सेव ट्रीज. सो वी कैन सेव द अर्थ बाय फॉलोइंग दिस पॉइंट्स. सो वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट डाउन, राइट? जितने ट्रीज़ हम कट करें उससे कई ज़्यादा नंबर्स में हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए. प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, राइट? प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, जब हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं लार्ज नंबर्स में तो उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन. सो वी शुड not waste paper and try to reuse it as much as possible because a lots of trees cutting down to make paper. So students, we should not waste paper, right? हमें कभी भी पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए because एक पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज जो है वो कट होते हैं. So we should not do that. Then in India, Wan Mahotsav is celebrated for a week in the month of July every year. So जुलाई के मंथ में एक वीक है, फर्स्ट वीक, उसमें हम वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो वन महोत्सव में हम क्या करते हैं, वन महोत्सव में द लेग्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग दिस 7 days. सो लाखों ट्रीज जो है वो ये 7 days में प्लांट होते हैं बाय ऑल ओवर द कंट्री. पूरे कंट्री में ये 7 दिनों में बहुत सारे ट्रीज जो है वो प्लांट होते हैं. Then the United Nations also observe a day called the World Environment Day. On this day, people talk about how to save environment, and we celebrated World Environment Day on 5th June. Right? हम World Environment Day celebrate करते हैं कब? 5th June को. Then comes our today's topic. It is importance of wildlife. Importance of wildlife. So animals that lives in the wild forest are a part of wildlife. तो wildlife किसे कहते हैं? तो जो वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट में रह रहे हैं, राइट, उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. वो जो एनिमल्स है वाइल्ड एनिमल्स वो वाइल्ड लाइफ का पार्ट है. एनिमल्स दैट लिव्स इन वाइल्ड फॉरेस्ट आर अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो जो एनिमल्स वाइल्ड फॉरेस्ट में रहते हैं वो वाइल्ड लाइफ का एक पार्ट है. Different wild animals are important to the environment in the following ways. Different wild animals are important to the environment in the following ways. तो डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स है
वो भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाय फॉलोइंग दिस वेज. सो लेट्स सी दिस वेज. ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. जैसे हमने ये सीखा था थर्ड स्टैंडर्ड में इन द फूड चेन, राइट, दैट एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर द फूड. And the starting from the food chain is start from the plants, right? So the all animals depends on plants and on each other for food. This connection between them for food forms the food chain in the environment, right? ये जो connection है उनका food के लिए एक दूसरे पर depend होना, वो एक food chain बनाता है environment में. The loss of animals or plants from this chain will lead to another animal dying, causing an imbalance in nature. The loss of many animals or plants from this chain, right? तो ये जो फूड चेन है इसमें कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो हम लूज़ कर देते हैं उसको, बिकॉज एवरी एनिमल जो है वो प्लांट या तो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करता है फूड के लिए. सो वी लीड टू अनदर एनिमल डाइंग, कॉजिंग एन इम्बैलेंस इन नेचर. तो वो एक नेचर में इम्बैलेंस लाता है. Animals such as squirrels, monkeys and even certain birds eat the fruits and seeds of some plants. Sometimes they throw away the seeds to far off places. As other, the time they eat the seeds which are later removed through their feces. In this way, these animals help to scatter seeds. तो पता है स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल स्क्विरल, मंकी, राइट, और द सर्टन बर्ड्स जो क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं या तो सीड्स खाते हैं प्लांट्स के. तो वो क्या करते हैं, समटाइम्स दे थ्रो अवे द सीड्स फार ऑफ प्लेसेस. तो समटाइम्स ये जो एनिमल है वो सीड्स को बहुत ही दूर प्लेसेस पे वो थ्रो कर देते हैं. समटाइम्स जो सीड वो खाते हैं उसको दूर प्लेस पे थ्रो कर देते हैं. एट अदर टाइम दे ईट द सीड्स which are later removed through their feces. In this way, this animal help to scatter seeds. So, तो जो बहुत सारे एनिमल्स है जो सीड्स खा जाते हैं, राइट, तो वो खाने के बाद वो अपनी फीसेस के थ्रू, दैट मीन्स जब वो मल करते हैं तो मल के द्वारा वो जो सीड उन्होंने खाए हुए हैं वो निकाल देते हैं, राइट. तो इसी तरह से सीड्स जो है वो प्लांट होते हैं. इन दिस वे दिस एनिमल्स ऑल्सो हैव टू स्कैटर सीड्स, राइट, वो सीड्स को फैलाने में हेल्प करते हैं. तो ये जो एनिमल्स है स्क्विरल्स, मंकीज, राइट, और द सर्टेन बर्ड्स, तो ये फ्रूट्स और सीड्स खाते हैं. कुछ सीड्स खाते खाते वो कहीं दूर प्लेसेस पे थ्रो कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सीड्स के थ्रू प्लांट ग्रो करता है. और कुछ सीड्स वो खा जाते हैं, तो जब वो खाते हैं तो अपने फीसेस के थ्रू यानी मल के द्वारा वो जो सीड है वो बाहर निकलता है और वहीं प्लेस पे वो उसमें से प्लांट ग्रो करने लगता है. तो ये जो एनिमल्स है वो हमें हेल्प करते हैं टू स्कैटर दी सीड्स. देन हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ. हम वाइल्ड लाइफ को सेव कैसे कर सकते हैं. सो वाइल्ड एनिमल्स आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग extinct from the face of the earth, mainly due to the reckless human activity such as mining, destructions of forests for creating cities and towns, and hunting, the killing of animals. So now our next topic is how to save wildlife. अभी हमने देखा importance of wildlife. Now our next topic is how to save वाइल्ड लाइफ. हम वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं. वाइल्ड एनिमल्स आर इन अ ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, मेनली ड्यू टू रेकलेस ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्रिएटिंग सिटीज एंड टाउन्स, एंड हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है. इट बिकम्स एक्सटिंक्ट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट? इट इज़ द मीनिंग ऑफ नष्ट, राइट. एक्सटिंक्ट का मीनिंग होता है नष्ट. तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो नष्ट हो रही है, राइट. अवर वाइल्ड लाइफ आर इन अ ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ के ऊपर से वाइल्ड लाइफ जो है वो नष्ट होने में बहुत ही ज़्यादा टॉप पे है. मेनली ड्यू टू रेकलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, राइट, उसकी वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में है. सच एज माइनिंग,
destruction of forest for creating cities and towns, and hunting and killing of animals. So हम फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा कट कर रहे हैं, उसमें से ट्रीज़ है उसको कट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट. देन क्रिएटिंग सिटीज़ एंड टाउन, और हम एनिमल्स जो है उसको हंट कर रहे हैं, उसको किल कर रहे हैं. इसकी वजह से हम वाइल्ड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डेंजर में रख रहे हैं. देन द सेकेंड पॉइंट इज trees are the natural homes of many animals such as monkeys, squirrels, birds, sloths, as well as insects. We should therefore save trees by preventing their reckless cutting down. We should also avoid clearing away of forest areas. So students, बहुत सारे एनिमल्स से उसका घर होता है ट्रीज, राइट. फॉर एग्जाम्पल मंकीज, स्क्विरल्स, बर्ड्स, स्लोथ्स, एज वेल एज दी इंसेक्ट्स. तो अगर हम ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में कट करते हैं तो ये सारे एनिमल्स कहाँ जाएंगे, बिकॉज ये सारे एनिमल्स का घर है ट्रीज़. वी शुड देयरफॉर सेव ट्रीज प्रिवेंटिंग देयर रेकलेस कटिंग डाउन, राइट. हम जैसे लार्ज नंबर्स में उसको कट कर रहे ट्रीज़ को, हमें वो अवॉइड करना चाहिए टू सेव ट्रीज़. वी शुड ऑल्सो अवॉइड क्लियरिंग अवे ऑफ फॉरेस्ट एरिया. तो हमें जैसे फॉरेस्ट एरिया को हम क्लीन कर रहे हैं टू क्रिएटिंग मोर लैंड, राइट. जैसे फॉरेस्ट एरिया में उसको हम क्लीन कर रहे हैं, वहाँ से ट्रीज जो है उसको कट कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पे घर बना सके, बिल्डिंग्स बना सके, राइट. क्रिएटिंग मोर लैंड्स फॉर द ह्यूमन्स. सो वी शुड नॉट डू दैट. हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट शुड बी बैंड. हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट शुड बी बैंड. स्टूडेंट्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो इसलिए मारे जाते हैं, हम ह्यूमन्स उसको इसलिए मारते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, राइट. तो जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उसके बॉडी पार्ट्स की वजह से हमें उसको मारना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट हंटिंग और किलिंग देम फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, और वो बैन होना चाहिए. वी शुड ऑल्सो अवॉइड यूजिंग दिस made from animal parts such as fur, skin, that means the leather, and the tusks. This will discourage the hunting of wild animals. तो हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए जो एनिमल्स के स्किन से बनी हुई होती है या एनिमल के कोई भी बॉडी पार्ट से बनी हुई होती है. फॉर एग्जाम्पल फर मटीरियल, राइट, लेदर, टक्स. तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए. जो चीज़ें ऐसे एनिमल्स के स्किन से बनी हो या एनिमल्स से बॉडी पार्ट से बनी हो, वो सारी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए टू सेव वाइल्ड एनिमल्स. दिस विल डिस्करेज द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसीलिए एनिमल्स को मारते हैं ताकि उसके बॉडी पार्ट्स यूज़ हो सके बहुत सारी चीज़ें बनाने में. अगर हम वही चीज़ें यूज़ करेंगे ही नहीं, राइट, तो क्या होगा कि जो लोग एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं, उनको डिस्करेजमेंट होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये जो लोग हैं जो हंटिंग करते हैं वो स्टॉप हो जाएंगे. सो वी शुड नॉट यूज़ द फर, द स्किन ऑफ लेदर और द टस्क, राइट. ऑल दिस थिंग्स आर मेड फ्रॉम द एनिमल स्किन और द एनिमल्स बॉडी पार्ट. वी कैन नॉट यूज़ them, right? So this is how we see the wildlife. Then let's remember. Okay, we'll do this exercise. Fill in the blanks with the correct words. First question: cutting down trees in large number is called dash. Afforestation or deforestation? Cutting down trees in large numbers. Cutting down trees in large numbers are called what? Yes, it is called deforestation. Right? Cutting down trees in large numbers is called deforestation. Second question: the United Nations observe dash to save to environment. One Mahotsav or World Environment Day. The United Nations observes one Mahotsav to save to environment. One Mahotsav means what? One Mahotsav जो है वो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, राइट. जुलाई के फर्स्ट वीक में 7 days जो होते हैं वो 7 days में हम क्या करते हैं ऑल ओवर. क्वेश्चन नंबर 2: द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व डैश वन महोत्सव और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू सेव टू एनवायरनमेंट. द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे टू
save to environment. Then question number 3, trees are important to us because they gives off dash, oxygen or carbon dioxide? Yes, it is oxygen. Trees are important to us because they gives off oxygen. And question number 4, animals and plants are dash on each other, depend or not depend? Animals and plants are depend on each other. Then keywords of this chapter, deforestation. What is deforestation? Cutting down of trees in large numbers is called deforestation. Then afforestation. So planting trees in large numbers is called afforestation. Then World Environment Day. A day meant to talk about ways to save the environment is called the World Environment Day. एक ऐसा दिन जहाँ पे हम बात करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं कि कैसे, और मेनी वेज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. सो दिस इज इट इज़ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट. Cutting down trees in large numbers is called deforestation, and planting trees in large numbers is called afforestation. Now turn the page. Summary of this chapter. First point, our earth is home to different types of plants and animals. Yes, trees are useful to us in many ways, so we need to protect them. We should plant more trees than we cut down to keep our earth green, right? So what is the summary of this chapter? Our earth is home to different types of plants and animals, right? हमारा जो earth है वो different types के plants और animals का घर है. And trees are very useful to us in many ways, so we should protect them, right? Trees जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है in many ways, so we should protect the plants. So and the third one is we should plant more trees than we cut down to keep our earth green, right? हम जितने नंबर्स में कट कर रहे हैं ट्रीज़ को, उतने ही से ज़्यादा नंबर्स में हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए टू कीप आवर अर्थ ग्रीन. So here our chapter is over. Explanation of this chapter is over. Now underline the hard words. Okay. First one is scatter, accent, mining, destruction, then reckless, hunting. Yes. So students, your homework for today is you write down all these hard words in your pen notebook of EVS, and also complete this exercise in the textbook. And last one is write down these keywords in your pen notebook of EVS as well. Okay. Thank you everyone. Have a wonderful day. Bye bye.